Hello students, myself K. Sipra. Welcome to my YouTube channel Physics by K. Sipra ma'am. If you like my concept, if you like my method of teaching, then please like and subscribe my video. Now the topic for today is charge. Charge, the basic fundamental about electricity, the electrostatics, everything, the current. What is basic factor behind the current is your charge. Now the question is what charge is? What is charge? So the topic is charge. Charge is a physical quantity like mass. Your mass is a physical quantity, fundamental quantity, inherent quantity. So charge is also the physical quantity. Now what it does, it explain about its electrical nature. Very common example, when you rub the comb in your dry hair, what happens? It attracts the small pieces of paper. It attracts the small pieces or bits of paper. Why? Due to the charge. Due to the static charge developed on the comb due to the rubbing. Now static charge will develop either due to the rubbing or friction or by conduction. Many methods are there. How can we create a charged body from uncharged object? किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम चार्ज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये चार्ज है क्या, किसको कहेंगे चार्ज? तो देखो, चार्ज को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम डिफाइन करते हैं, उसकी क्वालिटी के आधार पे हम उसको डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेम चीज है, जैसे कि मान लो अगर कोई भी जो फंडामेंटल फैक्ट होता है, जो खुद में फंडामेंटल है, बेसिक है, उसको आप किसी और के टर्म में तोड़ नहीं सकते हो. तो जब चार्ज को तोड़ने की बात आएगी तो ये भी पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर मैथमेटिकली हम जाएंगे, उल्टा चलेंगे, तो इसको हम करंट के टर्म्स में डिफाइन कर देते हैं. तो चार्ज का जो डेफिनेशन बात है वो क्या है? तो चार्ज इज द फंडामेंटल क्वालिटी, इज द फिजिकल क्वांटिटी due to which any matter exhibits its electrical nature. Now what are those electrical nature? Electrical nature means whether it will electrically attract some other charge or it will electrically repel some other charge. कहने का मतलब जब हम मैग्नेट लेते हैं, याद करो या क्या देखा होगा आप लोगों ने कि when you take two magnets, what will happen? It will either attract. If the north pole is there, it will repel. If north and south pole is there, it will attract. So that is called attraction and repulsion due to the magnet. Similarly, charges also attract and repel. So what is it? It is a physical quantity. What it is? It is a physical quantity of matter. किसकी physical quantity है? Matter की. Which by virtue of which it exhibits its electrical nature. करंट के बारे में पढ़ने से पहले चार्ज का फंडामेंटल कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है. सेकंड पॉइंट क्या हम बताएंगे चार्ज के बारे में? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इट इज? It is a scalar quantity. What it is? It is a scalar quantity. Alright? And it means only magnitude. Now, SI unit is coulomb. What is SI unit? It is coulomb. Represented by coulomb को कैसे represent करते हैं? C से. And charge is represented by generally by Q. In general Q से रिप्रेजेंट करते हैं. मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो I इज इक्वल टू होता है Q बाई T. अभी बताएंगे I इज इक्वल टू Q बाई T होता है जब करंट को एक्सप्लेन करें. I इज इक्वल टू Q T. तो यहां से क्या हो गया? यहां से हो गया Q इज इक्वल टू I T. आई बात समझ में? Q की का फॉर्मूला क्या आ गया? Q is equal to IT. Now, अब आता है कि चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं. तो चार्ज का जो टाइप है ये फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया था. इट वॉज फर्स्ट नेम्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज वॉज फर्स्ट नेम्ड बाय द साइंटिस्ट नेम एज बेंजामिन फ्रैंकलिन.
Benjamin Franklin was a scientist who named the charge into two different types. One is positive and one is negative. किसने किया था? तो naming of the charge. Naming of charge किनके द्वारा हुआ था? तो by Benjamin Franklin. याद रखोगे. It is Benjamin Franklin. क्या कहा था कि टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और सेकेंडली निगेटिव चार्ज. आई बात समझ में? चार्ज कितने कैटेगरी के होते हैं? तो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज. होप लिख लिया होगा आप लोगों ने. आगे बढ़ते हैं. ओके, तो तुम लोग को कैसे याद रहेगा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज? तो आप जानते हो कि क्लास 9th में पढ़ा होगा कि एटम्स जो होते हैं it is made up of electron, protons and neutron, in which electron is the negatively charged particles and proton is the positively charged particles. The nature of charge on electron is the nature of negative type, negative charge it is called, and nature of charge on the proton it is of positive charge. लेकिन ये आया कहाँ से? तो ये जो है एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट हुआ है चार्ज का मीनिंग. तुम ये जान लो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन हैज परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट. उन्होंने बहुत कुछ किया और उसके बाद ये नाम दिया. तो उन्होंने जब सिल्क रॉड, ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ पे रब किया, क्या किया? तो ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ पे रब किया, रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, तो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ, उन्होंने कहा कि इस तरह के चार्ज का नाम हम क्या देते हैं? पॉजिटिव चार्ज. क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव चार्ज. और उस पॉजिटिव चार्ज का नेचर प्रोटॉन के चार्ज के साथ मैच कर गया. The nature of charge developed on the glass rod by rubbing it with the silk cloth. It was same as the charge on the proton. So he told that these nature of charges we call it as positive charge. Clearly? Similarly, the another experiment he has performed, that is he rubbed the glass rod with ebonite rod. He rubbed the ebonite rod with fur cloth. फर कपड़ा पहनते हैं हम लोग, फर के. Then it said the charge developed on the ebonite rod that will be of negative type, and that is matches with the charges on electron. कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव और निगेटिव का जो नेमिंग उन्होंने किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इट वाज टोटली द आर्बिट्ररी कंसेप्ट. ये उनकी अपनी सोच थी, उन्होंने इसका नाम दिया. अगर वो चाहते तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव और प्रोटॉन को निगेटिव कह सकते थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा. उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. और उसके बाद की जितनी भी डेवलपमेंट है वो सब उसी आधार पे प्रोसीड करती है. तो हम भी यही याद रखेंगे कि प्रोटॉन क्या है, हमें भी क्या याद रखना है कि प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. क्लियर दिस थिंग? अब सवाल उठता है कि हम कैसे ऑब्टेन करते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, या पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट और नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हमें कैसे मिलेगा. तो देखो बहुत कॉमन से एग्जांपल है, मैं एकदम बहुत सिंपल मेथड में बताती हूँ आप लोगों को कि ये जो है आपका, लेट अस सपोज दिस इज द एटम. ठीक है, इसके कोर में होता है तुम्हारा प्रोटॉन्स. ठीक है, 4 प्रोटॉन्स है, तो इसके चारों तरफ क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, कहने का मतलब है कि नॉर्मल केसेस में NP यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, व्हाट इज NP? NP इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो दोनों चार्ज जो है वो क्या है? नंबर में सेम है. और साथ ही साथ तुमको ये याद रखना है कि अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. The amount of charge on protons and electrons are same, totally same, but only different in the symbol. That is, proton is positively charged particles, electron is negatively charged particles. Now question is, what is the amount of charge on one electron? On one electron we have the charge 1.6 minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and this is called basic unit or fundamental unit of charge. Fundamental unit of charge. आई बात समझ में? एंड सिमिलरली 1p will be equal to माइनस के बदले क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. क्लियर? तो नॉर्मल केसेस में क्या होता है? न्यूट्रल. ये क्या हो गया? न्यूट्रल एटम.
तो क्यों है न्यूट्रल? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ओवरऑल चार्ज क्या होगा, कुछ भी डेवलप नहीं होगा। जब उसके ऊपर ओवरऑल कुछ पोलैरिटी डेवलप होती है तभी वो ऑब्जेक्ट जो है, वही वो एटम जो है वो चार्ज ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल लेट अस, दिस वाज द केस 1, नाउ केस 2, सपोज दैट Np इज ग्रेटर देन Ne। ये कब होगा, when atom loses electrons, atoms loses electrons। कब होता है, जैसे एग्जांपल याद करो NaCl, सोडियम क्लोराइड, उसमें क्या होता है कि Na एटम जो है वो क्लोरीन को थोड़ा एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया तो सोडियम क्या हो गया, उस पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 10 और प्रोटॉन्स हो गए 11। आई बात समझ में? तो 11 प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन 10 इलेक्ट्रॉन्स। 11 प्रोटॉन्स फॉर एग्जांपल हम लेते हैं किसका, तो मैंने लिया Na का, Na। तो जब Na बनेगा तो उस केस में क्या होता है, Na क्या करता है कि इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन E माइनस। तो अब इसके रिजल्टेंट में क्या हो गया, रिजल्टेंट में हो गया इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स। कौन डोमिनेट करेगा, प्रोटॉन डोमिनेट करेगा, इसीलिए ये क्या बना देगा, ये बना देगा पॉजिटिवली चार्ज। आई बात समझ में? सिमिलरली केस 3 देखो, केस 3 Ne is greater than Np, Ne is greater than Np। ये कब होगा, तो चलो क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन इनटेक किया, कहां से किया था, Na से किया, इसी दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो इसमें इनटेक करने के बाद क्या हो जाएगा, 17 प्रोटॉन्स थे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मतलब ये मोबाइल नहीं चलाना। तो इट मींस 18 electrons will dominate over the 17 protons। 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो 17 प्रोटॉन से अधिक चार्ज का होगा। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, नेगेटिव। तो क्लोरीन अर्लियर क्या था, अर्लियर केसेस में यहाँ पर दोनों कितने थे, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या हो गया, 17 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये हो गया हमारा क्लोरीन माइनस। आई बात समझ? ओके, सो नाउ इट इज that when we make already made two types of charged body, positively charged and negatively charged body, how they will react, what is the nature? So next is what, nature of charge. Next is what, it is nature of charge, nature of charge। nature of charge, nature of charge। What is the nature of charge? Nature of charge is like charges repel each other, like charges repel each other। This is called nature, not the property of charge। Be very clear, nature अलग है, property अलग है। property कुछ और है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। नेचर क्या कहता है कि इफ यू हैव सपोज क्लोरीन माइनस बनाया हमने, सो इफ वन क्लोरीन एटम अनदर क्लोरीन एटम, व्हाट विल दे डू, दे विल रिपेल ईच अदर। सो सोडियम आयंस Na+, what will they do, they will repel each other। so if the two charges are either positive or if the two charges are either negative, they will repel each other। so like charges repel, like charges repel each other, means suppose this is my positive, this is my positive, what will they do, this is what is called, it is called repulsion। similarly this is negative, this is negative, this will like this, this will like this, what will they do, both will repel। आइए समझ में? सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड क्या है, unlike charges attract each other, unlike charges attract,
It means what? If one is positive, another is negative. One is positive, another is negative. They will attract. बुलाएगा, आओ आओ. लेकिन अगर सेम है, जाओ जाओ. अपोजिट है, आओ. सेम है, जाओ. आई बात समझ में? So this is called unlike charges. Unlike charges attract each other. Means, suppose this is my negatively charged body, this is my positively charged body, again this is my positively charged body and this one is the negatively charged. लोग कैसा भी पेयर ले लो, फर्स्ट बॉडी को नेगेटिव ले लो, दूसरे को पॉजिटिव ले लो, चाहो तो फर्स्ट को पॉजिटिव, दूसरे को नेगेटिव ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बस प्रॉपर्टी सेम है. तो देखो फोर्स किधर काम करेगा, इधर काम करेगा. ये नेगेटिव को पॉजिटिव, come to me, come to me, and this negative will do for positive, come to me, come to me. Similarly, this is and this is. What this shows? Can you see difference the diagram? ये force है, force लग रहा है, force है, सब force है, force. This is also force. All right. So this is repulsive force, and here it is attraction. What it is? Attraction. Got it? So like charges repel and unlike charges attract each other. In next video I will discuss with you the properties of charges. Thank you students. If you like my video, please subscribe and like my channel Physics by K. Sipra ma'am. Thank you students.